Yeah, a very good evening, everyone. We shall start in a couple of minutes. Thank you. Yeah, so a very good evening to everyone on this webinar. So, are you all able to listen to me? If someone can just say, yeah. So, fine. And my screen is also visible to everyone? Yes, okay. So, that sounds good. So, we'll have this webinar. So, I'll be talking about the three M's of trading, what they are. And yeah, one quick question I would like to. So you all want the webinar to be in English, in Hindi, or in both, meaning English, Hindi, dono chalega. So because all those people who are there, so someone is saying both English, English, yeah, both. Okay. So how I'll structure this webinar is that I'll be speaking in English and in Hindi, and the key points जो takeaways हैं which you really if you learn and implement. So I think you'll none of you'll have to share your screen, so that's something which you'll have to do. So please don't share your screens, just watch. So I think yeah. So yeah. So I'll what I'll do is I'll take you through what exactly trading is all about, and it's not only about fundamentals. It's not only about technicals. There's a lot more to trading. So I'll be talking about that as well. और मैं ये कोशिश करूंगा कि अगले 45 मिनट से एक घंटे के अंदर यू रियली हैव अ आई ओपनर मींस इफ यू आर अवेयर वेरी नाइस बट इफ यू आर नॉट अवेयर देन इट कैन रियली ओपन योर आईज एज टू व्हाट एग्जैक्टली ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट एंड और इवन इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट एंड व्हाट यू आर डूइंग वो कितना सही है कितना गलत है एंड व्हाट ऑल यू कैन लर्न so then let's get on this journey which we'll start right now. So this is a short journey but a very valuable journey. So now what I want to start with the three M's of trading की exactly three M's क्या हैं. तो ये जो थ्री एम्स है ये एक बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर और राइटर भी यूएस में there was a person by the name of Alexander Elder. So he's written a very nice book on this. He's titled the book as Trading for a Living. So where he talks about all this, and not only him, there are many successful traders, psychologists who talk about all these three. So what are these three M's kya hai, and how you can really learn and grow in the market. So that's something which you definitely need to look at. So जो मैं यहाँ cover करूँगा, I'll cover the mind. So first of all, the mind, which is the first M. Then the second is money. That is your money management. And the third is method. What method you should use to trade or invest. So I'll be talking about that. इन तीनों के बारे में बात करूँगा. सबसे पहले जो है, you look at the picture of the stool, जो stool रखा हुआ है बीच में wooden stool.
So you will find that it has got 3 legs. उसके 3 legs हैं and is standing firm on the ground. उसी तरह से trading में और investing में there are 3 things. Basically there are 3 rules which are there. So you have your mind, you have your money and your method. और ये जो जो ग्राफ आप पाई चार्ट देख रहे हैं, इसमें you will find कि winning psychology, that is mind plays 50% role of success or failure in the market. Next 30% is your money management, that is your risk management. जैसे if you look at today's market, what happened in the market today? The market opened with a up gap, moved significantly higher and then fell sharply and closed in the red, both Nifty and Bank Nifty. So money management is something which is called risk management, which is some people also call it stop loss, some call it asset allocation. That plays a very important role. तो money management जो है वो बहुत important role play करता है और उसका weightage overall 30% है. तो mind जो है that is your winning psychology, that is 50%. Money management is 30%. तो mind और money मिला के ही 80% है. And the balance 20% is your trading system. Long term के लिए investing if you're using fundamentals, short term के लिए trading. Unfortunately क्या है, ज़्यादातर लोग, majority of the people assume or believe that 100% is just the trading system. So no matter you might have the best trading system in the world, still if you don't have these two, that is how to have a right mindset and how to have a money management principle in place, believe me, you will never succeed in the market. मतलब होगा क्या, you will make money. It's not that you'll make money in the market, but you'll not be able to retain and keep that money. You'll win, you'll lose, you'll win, you'll lose. तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये तीनों चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. विनिंग साइकोलॉजी, माइंड, मनी मैनेजमेंट हो गया, और थर्ड हो गया आपका मेथड, विच इज योर ट्रेडिंग सिस्टम, विच इज आइदर अ फंडामेंटल्स or technicals. Fundamentals is more valid from a long-term perspective. That is investing. If you are buying a stock, want to hold for few years, then it makes sense. But if you have short-term trade कर रहे हैं, intraday कर रहे हैं, short-term कर रहे हैं, few weeks, few months, तो उसमें it's less of fundamentals, more of technicals, more of market psychology, more of sentiments that play in the market, more of the money flow which plays in the market. So hope so. So this far it's clear. Now we look at the mind first of all, because mind जो है यही आपका when it is 50%. So this is something which, and unfortunately majority of the people, they will never tell you about this. They'll just tell you trading system है, ये strategy ऐसे use करो, वैसे use करो. But वो best strategy, I said ना कि even the best strategy, it is given to everyone in the market, still they will not be able to make money because their minds are not geared in the right direction. Because ultimately जो है वो तो सोच, किस तरह की हमारी सोच है, how we think is something which plays a very important role in the market. And the second which I talked about is the money management. So talking about mind, what happens here is, mind में क्या होता है कि before we even start a battle, मतलब लोग battle में जाने से पहले ही we start thinking कि we will win or we will lose. So what is the attitude that we are having, it plays a very important role. If we say कि अरे मुझे मार्केट में तो किसी का पैसा नहीं बनता, ऐसा सोचेंगे तो हमारा भी पैसा नहीं बनेगा. But if you think, I have to make money in the markets, I will do my best what is there to be done. So then you are thinking from a different perspective. Or you will think like this, कि मार्केट में तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता. यदि ऐसा सोचते हो, then that means you are setting up yourself for failure. But if you say that I will take responsibility for my actions in the market and I will see the best of the opportunity, that means you are thinking from a different perspective. Second is that we all have biases. Biases मतलब क्या कि हम लोग sometimes we like someone, like something, but if someone asks us why we like, we don't have an answer. So that's what is called bias. So market में we generally see what we want to see. Means if someone is bullish but the indicators are flashing red, indicators जो है red flash कर रहा है तो भी उसे bullishness ही दिखेगा. या फिर मार्केट्स में यदि सेलिंग है, मार्केट्स में बहुत सेलिंग है, then also he will find that there is bully, he's seeing the green lights only. So the point what I'm trying to say is कि जितना कम आप bias होते हैं, जितना ज़्यादा you become objective. So what is that? I will explain that as well. So you have to understand कि we all are successful in life to a certain extent. So, but the process that we have followed to become successful in life, मतलब जो प्रोसेस हम लोगों ने आज तक फॉलो किया, हर एक जितने भी लोग यहाँ हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ,
कि हम लोगों ने जो भी प्रोसेस फॉलो किया है आज तक सक्सेसफुल होने के लिए जिंदगी में, यदि वही प्रोसेस हम मार्केट्स में फॉलो करेंगे, देन गारंटीड वी विल लूज 100%. देयर इज नो इफ एंड बट. बिकॉज जो थिंकिंग हमें जिंदगी में सक्सेसफुल बनाती है, उस थिंकिंग को हम मार्केट्स में लाते हैं, तो वी विल बिकम अनसक्सेसफुल. आई विल एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, बिकॉज then it will be clear. Means you will be thinking why I am saying that, because generally what happens is, so these are important points which I would say which can really change your way of thinking. You have to understand कि देखिए जिंदगी में क्या होता है, what has been told to us throughout our life कि चैलेंज आता है तो ओवरकम द चैलेंज, फाइट द ऑब्स्टिकल. जो भी मुश्किल आती है उसको पार करो, उस पे जीत पाओ. तो ये जिंदगी में हम लोग इस तरह से चलते हैं. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, दैट्स अ वैलिड पॉइंट. बट मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में मैं और आप अकेले नहीं हैं. यहाँ लाखों लोग हैं. पहली बात, पूरी दुनिया है. everyone is there. So ultimately the market is right. I might be right, I might be wrong, but I cannot fight the market. जिंदगी हमें क्या है, वो चैलेंज एक्सेप्ट करना सिखाती है और चैलेंज ओवरकम करना सिखाती है. बट मार्केट में आप चैलेंज मार्केट को नहीं कर सकते. इस तरह से आप ईश्वर को, गॉड को चैलेंज नहीं कर सकते, वैसे ही आप मार्केट को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट मुझसे, आपसे जितने भी लोग हैं, सबसे स्ट्रांग और सबसे पावरफुल है. तो ये जो थिंकिंग हम लोग की रहती है कि हम लोग जो भी आएगा हम लोग डट के मुकाबला करेंगे, दैट इज नॉट द राइट वे इन द मार्केट. So I will explain that with other examples so you'll get even further clarity, but I hope you are getting what I am saying. और मार्केट में ना देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो एंड. मतलब कोई शुरुआत नहीं है, कोई एंड नहीं है. रिलायंस तो कितने सालों से ट्रेड कर रहा है. जिस दिन आपने खरीदा उस दिन आपके लिए शुरुआत है. जिस दिन आपने रिलायंस एग्जिट किया उस दिन आपके लिए वो एंड है. तो मार्केट इज लाइक दैट. उसमें कोई शुरुआत नहीं है, कोई एंड नहीं है. जहां हम शुरू करते हैं दैट इज द बिगिनिंग, जहां हम एंड करते हैं दैट इज द एंड. इट इज व्हाट वी क्रिएट इन आवर माइंड. सो माइंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक और अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि मार्केट जो, जैसे आप लोग ने सब देखा होगा, मतलब बचपन में तो हम लोगों ने जरूर देखा, अभी भी कभी मौका लगता है देखते हैं कि जैसे जो जो स्नेक चार्मर होता है, जिसे सपेरा कहते हैं, वो जब अपना बीन बजाता है तो सांप किस तरह से हिप्नोटाइज होके उसके बीन के हिसाब से वो सांप जो है वो डांस करता है. उसी तरह से मार्केट में ट्रेडर्स हिप्नोटाइज हो जाते हैं स्क्रीन देख के. स्क्रीन सब रेड रहता है, then we become hypnotized. Screen becomes all blue, we are hypnotized. So all the traders, they are hypnotized by the screen. And आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जैसे कि द स्नेक जो है ना, स्नेक को उतना सुनने की शक्ति उसकी इतनी स्ट्रांग नहीं है. तो लोगों को गलतफहमी होती है कि वो फ्लूट का साउंड सुन के वो डांस कर रहा है. इट इज नॉट दैट, इट इज द मोशन ऑफ द फ्लूट. आप देखिएगा सपेरा जो है फ्लूट को मूव करता है, वो फ्लूट के मूवमेंट से वो स्नेक जो है वो मूव करता है. तो कहना मैं ये चाहता हूं कि मार्केट्स भी आपको हिप्नोटाइज कर रहा है एज अ ट्रेडर. नो, if many of you are trading, so you will understand what I am saying कि you have taken a position. आपने कोई पोजीशन लिया, पोजीशन आपके फेवर में जा रहा है तो आप इमोशनल हो जाते हैं, आप बहुत खुश हो जाते हैं, और फिर आप क्लोजली देखते हैं और क्या होगा, ये होगा, आप सोचने लगते हैं. भाई आपने पोजीशन लिया, यू टेकन अ पोजीशन, इट गोज अगेंस्ट यू, आपके अगेंस्ट जा रहा है पोजीशन. तो क्या वो आदमी दुखी होने लगता है, फिर मूड स्विंग चेंज होने लगता है, फिर सोचने लगता है अब क्या करूं, पॉजिटिव न्यूज खोजने लगता है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मार्केट जो है ये आपके साथ नहीं, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसे ही करता है, क्योंकि हम लोग करने देते हैं. तो यहाँ जो है माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे एक आप लोगों ने ये भी देखा होगा, जो स्पेन में जो बुल फाइट होता है, तो उसमें जो बुल फाइट करते हैं उनको मैटाडोर बोलते हैं. तो आप देखते हो कि वो रेड रेड कपड़ा जो है उसको वो फ्लैग को या रेड कपड़े को वो वेव करते हैं, तो बुल चार्ज करते हुए आता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाली ये है कि बुल जो है उस कलर ब्लाइंड है, वो कलर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता. उसको नहीं पता कि कपड़ा रेड है, तो वो तो कपड़े के मूवमेंट से वो आ रहा है. तो बुल वहां जो है, क्योंकि उसको रेड कलर इसलिए दिया गया क्योंकि रेड कलर खून का है, और ये गेम जो है दैट इज ऑफ ब्लड. दैट इज द रीजन. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज मार्केट भी आपको सब तरीके से
हिप्नोटाइज करेगा। जैसे आज ही की बात करें मार्केट्स में, तो चार्ट्स भी दिखाऊंगा आप लोग का, व्हेन आई कम टू द मेथड तो मैं वहां भी लेके जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा और इससे कोरिलेट करके समझाऊंगा कि जो है मार्केट हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। और क्या होता है कि जब और सारे इंटेलिजेंट लोग मार्केट में आते हैं, तो वो मार्केट में आते तो हैं लेकिन अपने आंख आंख तो खुले रखते हैं, बट अपने दिमाग को वो बंद रखते हैं। मतलब यू हैव टू बी वेरी ओपन टू थिंकिंग कि मार्केट में क्या हो रहा है। और द प्रॉब्लम इज कि वी आर ऑल ड्रिवन बाय इमोशंस। हम लोग क्या, वी आर इमोशनल बींग्स। कोई हमें अच्छा बोलता है, प्रेज करता है, तो वी बिकम हैप्पी। कोई हमें कुछ गलत बोलता है तो वी बिकम सैड, और वी बिकम इंट्रोस्पेक्ट। तो क्या है, मार्केट भी चाहता है कि आप अपने इमोशंस ही मार्केट में लाएं, बिकॉज मार्केट ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि इफ यू आर इमोशनल इन द मार्केट यू विल नेवर मेक मनी। तो आप जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनसे आप बात कीजिए, वो यही बोलेंगे कि इमोशंस, देयर इज नो प्लेस फॉर इमोशंस इन द मार्केट। But the market unfortunately wants each and every one of us to be only and only emotional in the market. तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जितना भी अच्छा सिस्टम डेवलप कर लीजिए, जितनी अच्छी आपकी स्ट्रैटेजी डेवलप कर लीजिए, लेकिन जब तक माइंड पे और मनी मैनेजमेंट पे आप एक मास्टरी हासिल नहीं करेंगे, तब तक मार्केट्स में कंसिस्टेंटली पैसा बनाना आसान नहीं रहेगा। कभी बन जाएगा, कभी चला जाएगा, कभी बन जाएगा, कभी चला जाएगा। But consistently, if you want to make, then you have to have both the mind and the money along with the method. So इसको आपको ऐसा समझना है, I'll explain this with some other example, कि you have to understand कि जो आप फोटो देख रहे हैं, इसमें क्या है, you are seeing this photo, so I'll just recheck that all of you are able to view the screen and listen to my voice carefully. Yes, okay, thank you. Yeah. So you have to understand. Just look at this photograph. It's what about 8 to 10 soldiers are there with their guns, where they're in their gears, warfare gears. तो आपको भी ये समझना है कि जब आप मार्केट में आ रहे हैं तो आप युद्ध में आ रहे हैं, यू आर गेटिंग इनटू अ बैटल। क्योंकि वहां बैटल क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां तो सोल्जर्स जो है वो तो अपनी लाइफ को रिस्क पे लेके जा रहे हैं। यहाँ भी आप अपने फाइनेंशियल कैपिटल, तो फाइनेंशियल लाइफ को तो रिस्क पे ले रहे हैं। तो इफ यू आर गेटिंग इनटू अ बैटल, यदि आप अब जस्ट इमेजिन कि इफ यू आर अ सोल्जर एंड यू आर इन अ वॉर जोन, तो आप कितने अलर्ट रहेंगे। जिस तरह से हम लोग गार्डन में वॉक करते हैं, क्या वैसा अलर्टनेस से काम चलेगा क्या? नहीं। तो वी हैव टू बी अलर्ट, बिकॉज कहीं से भी गोली आ सकती है, कहीं से भी कुछ चल सकता है, एनिमी कहीं से भी अटैक कर सकता है। तो इन द मार्केट ऑल्सो यू हैव टू हैव दैट माइंडसेट कि एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, और योर मनी, योर प्रेशियस फाइनेंशियल कैपिटल इज एट रिस्क, बिकॉज एवरीवन इज ट्राइंग टू आउट नंबर यू और आउट मैनूवर यू, या आपको हराना चाहता है। तो इसीलिए जब आप मार्केट में आते हैं तो सोबर रहना बहुत जरूरी है। यदि कोई ड्रंक है तो क्या वो अच्छा सोल्जर बन सकता है? चाहे जितनी अच्छी उसकी नॉलेज हो, जितनी अच्छा उसकी गन हो, वर्ल्ड की बेस्ट गन हो उसके पास, वर्ल्ड का बेस्ट नॉलेज हो कि कैसे गोली चलाना है, लेकिन यदि वो ड्रंक हो तो क्या वो अच्छा सोल्जर बन सकता है? नहीं। वैसे ही क्या आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं? कैन यू बिकम अ गुड ट्रेडर और इन्वेस्टर इफ यू आर वेरी हाई ऑन इमोशंस, यू बिकम वेरी इमोशनल इन द मार्केट? नो। दैट्स द रीजन डिसिप्लिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट्स में। मीनिंग जिंदगी में तो डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस है, बट मार्केट्स में और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, यू विल रियली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। देखिए क्या है कि जब हम लोग बचपन से लेके जब तक इस धरती पर रहते हैं, आई विल स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। इज देयर एनीवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी? Yeah, is there anyone who does not understand Hindi? You can just type in the chat. I'll just have a look. Okay, so I am assuming that everyone understands Hindi, so that many times I will not be then. Yeah, just 1 second. There was one message. Uh, yeah, so I think everyone understands Hindi. सब लोग समझते हैं. So for you, तो
तो यहाँ मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आपको ये समझना, जब, हाँ, जो मैं कह रहा था कि जिस दिन हम लोग धरती पे आए और जिस दिन हम इस धरती से जाएंगे, व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग जो है रूल्स में जीते हैं। जिस फैमिली में हम लोगों का जन्म हुआ, जिस कल्चर में हम लोग पैदा लिए, जिस कंट्री में हम लोग पैदा लिए, जिस सोसाइटी में हम लोगों ने जिया, उसके कल्चर्स हैं, उसके रूल्स हैं, वो भी फॉलो। बड़े होते हैं तो वी गो टू स्कूल, तो देर आर रूल्स ऑफ द स्कूल, देन वी गो टू कॉलेज, देर आर रूल्स ऑफ द कॉलेज, देर आर रूल्स ऑफ द सोसाइटी। यदि स्कूल की टाइमिंग 8 बजे है तो क्या हम लोग स्कूल 10 बजे जा सकते हैं क्या? नहीं। स्कूल की यदि एंड टाइमिंग 3 बजे, तो क्या हम लोग स्कूल से 2 बजे निकल सकते हैं क्या? नहीं। यदि गाड़ी जो है वो इस डायरेक्शन में चलाना है, तो क्या हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी उस लेन में चला सकते हैं क्या? नहीं। ऑफिस का टाइमिंग यदि 8 बजे या 9 बजे का है, तो क्या हम लोग 12 बजे ऑफिस जा सकते हैं क्या? नहीं। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के भी रूल्स हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि थ्रू आउट जिंदगी में हम लोग रूल्स से ही चलते हैं। जिंदगी, हमारी जिंदगी रूल्स से चलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट में देर आर नो रूल्स। इट इज फ्री फॉर ऑल। उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी भाव पे खरीद सकते, किसी भी भाव पे बेच सकते, जितनी क्वांटिटी चाहे आप खरीद सकते, जितनी क्वांटिटी आप चाहे बेच सकते, एज लॉन्ग एज यू हैव मनी इन योर अकाउंट। ये अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट यूज टू सच सॉर्ट ऑफ फ्रीडम। तो मार्केट में हमें वी गेट कंप्लीट फ्रीडम इन द मार्केट, बट वी आर नॉट यूज टू सच फ्रीडम, मीनिंग व्हाट आवर ब्रेन इज नॉट यूज टू सच फ्रीडम। इसीलिए यू विल फाइंड कि पीपल स्ट्रगल इन द मार्केट, बिकॉज ऐसा फ्रीडम तो उनको जिंदगी में हम लोग को मिला नहीं है, किसी को नहीं मिलता ऐसा फ्रीडम। और मार्केट में देयर इज कंप्लीट फ्रीडम। दैट्स व्हाई यू विल फाइंड कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं, चाहे इंडिया के रहें, जापान के रहें, जर्मनी के रहें, यूएस के रहें, एनीवेयर यू से, एनी एसेट क्लास दे ट्रेड, इक्विटीज, कमोडिटीज, करेंसीज, व्हाटएवर, they always and always say कि there has to be some discipline. That discipline means what? कि some rules that you follow while you are in the market, just like you are in a battle. So I hope this concept is clear, because I wanted to spend some time, because this is something you'll never get from other places. But at the same time, I want that you should understand this, because आपको क्या strategy तो मैं बता दूंगा, strategy is something which is very exciting, you'll see, but this is the most important part. और एक चीज और भी समझना है कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, इट्स नॉट दैट दे डोंट मेक मिस्टेक्स। वो भी गलती करते हैं, बट वो क्या है, दे लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड दे ट्राई नॉट टू रिपीट दोज मिस्टेक्स, बिकॉज सेम मिस्टेक को रिपीट करना इज नेवर अ गुड आइडिया। So this was on the mind part. So now I'll be talking about the method, the money part. What exactly is money? So money से I mean money management. इसे risk management भी कहते हैं। So money management क्या? First of all, look at this picture on the left. So you are able to see this, that a person is falling and he's saved by a net, and he's a construction. You can call him a worker, engineer, whatever. तो क्या हो रहा है कि एक हाई राइज कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे ही इज वर्किंग, सडनली ही फॉल्स। दिस सेफ्टी नेट इज विच प्रोटेक्ट्स हिज लाइफ। तो मनी मैनेजमेंट इज व्हाट सेपरेट्स विनर्स फ्रॉम लूजर्स। जो मार्केट में पैसा कमाते हैं और जो मार्केट में पैसा गवाते हैं, उसको सेपरेट सिर्फ मनी मैनेजमेंट करता है। मनी मैनेजमेंट क्या हो गया? रिस्क मैनेजमेंट है। जैसे जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, एग्जांपल भी आगे है लेकिन मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँ। सपोज किसी के पास लाख रुपए, सपोज समवन हैज गॉट 1 लाख रुपी, he is wanting to invest in the market or trade in the market, whatever. So we talk about trading. He wants to trade in the market. He says, okay, I like HDFC Bank, or we'll take today's example. He'll say, I like to sell HCL Technology, which was up 10% today. Because if someone is buying, then someone is selling, then only a trade can happen. कोई भी ट्रेड होने के लिए बायर और सेलर दोनों की जरूरत होती है। सिर्फ बायर रहेंगे तो भी ट्रेड नहीं होगा, सिर्फ सेलर रहेंगे तो भी ट्रेड नहीं होगा, बोथ हैव टू बी देयर। So HCL Technology rallied by 10% today. So that means there were buyers and sellers both. अब किसी ने सेल कर दिया HCL Technology को 720 पे, XYZ अमाउंट इस पे। अब उसने सेल कर दिया और उसको भी फ्यूचर सेल कर दिया। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। इट्स गोइंग अप 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 अप। विल टेक द एग्जांपल ओनली, मैं थोड़ा सा उस पर बात करता हूँ। आई जस्ट शो यू।
You all are able to see the screen? This chart which I'm saying? Yes, okay, thank you. So this is the chart of HCL technology. So I have not put any indicators to my method pen में आऊंगा इसलिए I have not put anything. So this is HCL technology. Just look at it today. The sort of movement which it has displayed. ये फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग 721 पे थी. आज ये गैप अप खुला ही 745 पे, 750, और 750 से ये 825 गया और क्लोजिंग 800 के लगभग 794 95 पे हुई. नाउ समवन वुड हैव गॉट शॉर्ट हियर. किसी ने तो यहाँ शॉर्ट किया वो तो साफ हो गया ना. So what I'm trying to say is that this is where money management will come into place. Okay, you feel okay, HCL technology will come down and you will sell here, but if you don't have a stop loss, you don't have an exit strategy, then so you are roasted. And we'll just look at one thing like HCL technology. So yeah, so here the lot size is 1400. 1400 का lot size है HCL technology. If we, yeah, just 1 second, reconfirm. Yes, lot size is 1400. So just imagine कि ये 1400 का lot size है और ये 760 का 800, almost 40. तो 40 into 1400 is 56,000 rupees. मतलब someone went short here and he's hold, so he's to finish one lot में 56,000. If he's got 10 lots, then just imagine, or 20 lots, whatever. So what I'm trying to say is this is what money management is all about, which separates winners from losers. Because यदि आप ये नहीं समझते हैं ना तो you are in problem. Because ये आपको बताएगा, money management tells you how much to buy. Now coming back to the example, suppose आपके पास 1 लाख रुपए है, you got 1 lakh rupee. Should you go short in HCL technology all 1 lakh और buy HCL technology? Suppose आपने HCL technology खरीद लिया, पूरा पैसा लगा दिया और वो तो आपको आज जैकपॉट दे दिया. But every day will not be that day. Maybe one day you lose. So what the point I'm trying to say is don't risk too much on one particular trade. Now what is that too much? जितने भी ट्रेडर्स और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ये सब हुए हैं, ट्रेडर्स खास करके, वो ये बोलते हैं कि 2% से 5% दैट इज द मैक्सिमम रिस्क ऑफ योर कैपिटल यू शुड टेक ऑन वन ट्रेड. मतलब यदि आपके पास लाख रुपए तो 5,000 से ज्यादा का रिस्क आप एक ट्रेड में मत लीजिए. एक्सक्यूज मी. तो क्या होगा यदि आपके अगेंस्ट भी जाएगा तो आपका 5,000 का लॉस होगा. सपोज अप गैप डाउन गैप हो गया तो 5 का 10,000 होगा. आपका पूरा कैपिटल तो वाइप आउट नहीं होगा. So if you want to stay in this game for a long period of time, you have to understand कि if you want to make money, then it's not a 100 meters race नहीं है जो 10 सेकंड के अंदर खत्म हो गया. It's a marathon, 42 kilometers race है. तो लंबी रेस है ये. So money management will help you survive in the game in the long run. लंबे समय तक आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे और जब आप सर्वाइव करेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे. अदरवाइज क्या होगा कि आपने बड़ा ट्रेड ले लिया, बड़ा रिस्क ले लिया, पैसा आपने बना लिया तो अच्छी बात है, बट वो पैसा फिर ज्यादा समय तक रहेगा नहीं, क्योंकि फिर कोई ट्रेड आएगा जिसमें आप गलत अटक जाएंगे और फिर यू विल नॉट एग्जिट एंड देन यू आर हिट वेरी हार्ड. तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स और एमेचर्स जो रहते हैं ना, उनमें ये डिफरेंस है. जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं दे ऑलवेज हैव एन एग्जिट स्ट्रेटजी. वो एंटर करते उससे पहले उनकी एग्जिट स्ट्रेटजी रहती है. एमेचर्स क्या होता है, वो लॉटरी टिकट की तरह करते हैं. वो ट्रेड ले लिए, वो जैसा चल रहा है, उसके बाद फिर उनको जब बहुत लॉस होगा तब एग्जिट करेंगे, या छोटा सा फायदा हुआ तो एग्जिट कर गए. तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो इसमें क्या होता है, मनी मैनेजमेंट से आपको ये पता चलेगा कि मैक्सिमम पॉसिबल रिस्क कितना है. इससे एक फायदा होगा कि आप बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि यदि आपका 2% 5% ही एक ट्रेड में रिस्क ले रहा है तो आप उतना ज्यादा टेंशन में नहीं लेंगे. लेकिन आपने एक ही ट्रेड में 30% रिस्क ले लिया या 50% रिस्क ले लिया, देन यू विल बी थिंकिंग टू मच फॉर दैट ट्रेड, which again means you will become more emotional, which again means your probability and possibility of going wrong increases significantly. So this is what money management is. It is a safety net, separates winners from losers, tells you how much to buy. तो यहाँ मैं एक एग्जांपल के साथ अब आप लोग को थोड़ा समझाऊंगा तो ये और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग. तो आप समझिए कि सपोज समवन स्टार्ट्स विथ 100, उसके कैपिटल में 100 है, मतलब 100 रुपीज मान के चलिए. उसका फर्स्ट ट्रेड ही 50% लॉस ही टिक्स. So in the first trade he loses 50% of the capital, तो एंड में he has
50%, 50 रुपीज बचा। नेक्स्ट ट्रेड में ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 50%। फर्स्ट ट्रेड में ही लॉस 50%, तो 100 becomes 50। सेकंड ट्रेड में ही मेक्स 50%, so but he does not have 100 now, now he has only 50, so 50 का 50% is how much, 25, so he has a capital at the end of the second trade is 75। देन व्हाट हैपेंस इज कि उसने 3 ट्रेड और लिए और हर एक ट्रेड में उसे 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 75% हो गया 82.5, 82.5 हो गया 90.8, और 90.8 हो गया 99 पॉइंट। मतलब ये समझने वाली बात ये कि 75 का 10% होता है 7.5, वहां एक डेसिमल पॉइंट रहेगा, तो वो हो गया 82.5, 82.5 हो गया 90.8, और 90.8 हो गया 99.9। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ यू हैव टेकन 5 ट्रेड्स 1 2 3 4 5, 4 ट्रेड्स हैव गॉन राइट, मतलब 5 ट्रेड आपने लिए, 5 ट्रेड में से 4 ट्रेड आपके सही गए, तो इफेक्टिवली यू हैव अ स्ट्राइक रेट ऑफ 80%, विच इज वेरी गुड। बट स्टिल एंड में क्या नतीजा क्या रहा, ब्रेक इवन। यहाँ हम लोगों ने ब्रोकरेज भी इंक्लूड नहीं किया, मतलब ब्रेक इवन भी आपका नहीं हो रहा है, ब्रोकरेज इंक्लूड करेंगे तो और लॉस आपका बढ़ जाएगा। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि यदि आप मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, मीन्स इफ यू फॉलो मनी मैनेजमेंट देन यू विल नेवर रिस्क सो मच इन अ वन पर्टिकुलर ट्रेड। सो what effectively it means is you can be right and still lose money। यहाँ आप राइट है मतलब 4 टाइम आउट ऑफ 5 यू आर राइट, बट स्टिल यू आर लूजिंग मनी। सेकेंड इज यू कैन बी रॉन्ग एंड स्टिल मेक मनी, क्योंकि बहुत सक्सेसफुल जो ट्रेडर्स हैं दुनिया में, उनके ट्रेड्स ना 40%, 40%, 45% ही सही रहते हैं, 50%, 60% उनके ट्रेड्स गलत रहते हैं, बट स्टिल दे आर एबल टू मेक मनी। व्हाई इज दैट? बिकॉज वो मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। उनका लॉस वाला सौदा वो बुक कर लेते हैं, छोटा लॉस लेते हैं, फायदा वाला सौदा को जहां तक होता है वो होल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो जनरल माइंडसेट क्या रहता है लोगों का कि जब वो प्रॉफिट में रहते हैं तो वो ट्रेडर बन जाते हैं, और जब लॉस में रहते हैं तो वो इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो जब लॉस होता है तो इन्वेस्टर बन के वो ट्रेड को रख लेते हैं, और फायदा होता है तो तुरंत ट्रेडर बन के प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं मार्केट में वो इसका क्लियर कट उल्टा करते हैं, प्रॉफिट में वो इन्वेस्टर बनते हैं, लॉस में वो ट्रेडर बनते हैं। मतलब लॉस में वो लॉस को कहीं ना कहीं प्री डिफाइंड जगह काट लेते हैं, उसके बाद मार्केट इधर जाए, फायदे वाले सौदा को वो कोशिश करते हैं जहां तक राइड कर सके। तो ये सब चीजें जो है आपको मेथड से पता चलेगा, जो अब हम लोग थर्ड पॉइंट जो कवर करेंगे। सो आई होप दिस फार इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो नाउ वील टॉक अबाउट द मेथड। तो मेथड में दो तरह के होते हैं मेथड, एक तो फंडामेंटल एनालिसिस होता है और सेकेंड इज टेक्निकल एनालिसिस। मैं फंडामेंटल एनालिसिस पे 1-2 मिनट लूंगा, उसके टेक्निकल्स पे आएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में टेक्निकल्स की ज्यादा जरूरत रहती है। देन आई विल टेक यू थ्रू चार्ट्स एंड एवरीथिंग, आई विल एक्सप्लेन टू यू। सो फंडामेंटल एनालिसिस जो है, आप ये समझिए कि फंडामेंटल एनालिसिस में आप इकोनॉमी ओवरऑल, पहले तो इकोनॉमी समझते हैं, फिर इंडस्ट्री समझते हैं, फिर इंडस्ट्री की क्या ग्रोथ है, फिर ये पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, इकोनॉमी पॉलिसी क्या है, आरबीआई पॉलिसी क्या है, कंट्री की जीडीपी कैसे जा रही है, इन्फ्लेशन कैसा है, इंटरेस्ट रेट कैसा है, फिर कंपनी, फिर आप इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं, उसके बाद कंपनी एनालिसिस पे आते हैं, फिर कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए करते हैं, लॉन्ग टर्म कोई शेयर आप बाई करना चाहते हैं, कोई कंपनी के शेयर बाई करना चाहते हैं, तो आपको ये भी समझ बहुत जरूरी है कि कंपनी की परफॉर्मेंस आगे कैसे रहेगी, हाउ द कंपनी विल परफॉर्म गोइंग फॉरवर्ड एंड ऑल दैट। और फाइनेंशियल एनालिसिस भी करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, बहुत चीजें क्वांटिफाई नहीं होती है, मतलब कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कैसी है, उसके बारे में भी समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज जैसा कैप्टन रहेगा शिप का, वैसे ही शिप जाएगा ना समुद्र में। तो स्टॉर्म आ गया तो बचाने वाला कैप्टन अच्छा है, तभी वो बचा पाएगा। तो कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कैसी है, तो ये सब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों पैरामीटर्स आ जाते हैं, तो उनको समझना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। दूसरा हो गया टेक्निकल एनालिसिस, जिस पे अब हम बात करेंगे, और अपना अपना जो बाकी समय है वो मैं इस पे टेक्निकल्स पे बात करूंगा। तो आई होप आप लोग को जो माइंड है वो क्लैरिटी आई, मेथड पे क्लैरिटी आई। अब हम लोग सॉरी, माइंड पे और मनी पे, अब ये जो थर्ड में कवर कर रहा हूँ वो मेथड है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है, ये एक्सरे ऑफ द मार्केट है। जैसे किसी को चेस्ट में पेन होता है तो डॉक्टर बोलता है ईसीजी करा के आओ, मैं ईसीजी रिपोर्ट देखूंगा, और वो बता देता है। उसी तरह किसी को फ्रैक्चर हुआ तो डॉक्टर बोलता है एक्सरे करा के आओ, वो एक्सरे देख के बोल देता है ये फ्रैक्चर है, हेयरलाइन है या वॉट एवर। उसी तरह से
चार्ट्स जो है टेक्निकल एनालिसिस एक्सरे ऑफ द मार्केट है, आपको ये बताएगा कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा 2 मिनट समझाना चाहूंगा। जैसे यूएस में क्या है, यूएस और इंडिया हम लोग दोनों वी आर बोथ डेमोक्रेटिक कंट्रीज, डेमोक्रेटिक नेशंस। बट यूएस में देर आर टू पार्टीज, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स। अभी करंटली रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप इज द प्रेसिडेंट। अभी इलेक्शंस होगा तो या तो दोबारा वहां रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप आएंगे या फिर कोई और आएगा, दैट इज डेमोक्रेट जो बाइडेन। तो यूएस के डेमोक्रेसी में सिर्फ 2 पार्टीज हैं, इंडिया में सैकड़ों पार्टीज हैं, जिसको मन वो अपनी पार्टी बना सकता है। उसी तरह से मार्केट में 2 पार्टी ही रहती है, या तो बुल कैंप या बेयर कैंप, या तो तेजी करने वाले या मंदी करने वाले। तो मार्केट में भी 2 कैंप है। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस जो है वो ये बता सकता है कि अभी बुल कैंप ज्यादा स्ट्रांग है कि बेयर कैंप ज्यादा स्ट्रांग है। तो आप जब बुल स्ट्रांग है तो आप बुल बनिए, जब बेयर स्ट्रांग है तो आप बेयर्स बनिए, या फिर आप शॉर्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने प्रॉफिट को बुक करके साइड में रख सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस एक्सरे ऑफ द मार्केट है। टेक्निकल एनालिसिस स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, मास साइकोलॉजी। क्योंकि जो हम लोग की ह्यूमन साइकोलॉजी है वो 10,000 20,000 साल 30,000 साल से वो बदली नहीं है। हम लोग की जो, जैसे हम लोग फियर पे, लालच पे, डर पे, ये सब पे रिएक्ट करते हैं आज, वैसे ही हम लोग 1,000 साल पहले और 5,000 साल पहले और 10,000 साल पहले भी वैसे ही करते थे। तो कहना ये मैं चाहता हूँ कि वो सब जो फियर फैक्टर है और जो लालच है ना, वो उसमें कोई बदलाव नहीं है सोच में ह्यूमन बींग्स के। वो आज भी हम लोग वैसे ही रिफ्लेक्ट करते हैं जैसे हम लोग हजारों साल पहले कर रहे थे। तो टेक्निकल एनालिसिस मास साइकोलॉजी को स्टडी करता है, ह्यूमन साइकोलॉजी को करता है। और टेक्निकल एनालिसिस के 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स बेसिकली हैं, जिसमें एक प्राइस हो गया, दूसरा वॉल्यूम हो गया, थर्ड ओपन इंटरेस्ट हो गया। तो ओपन इंटरेस्ट जो है प्राइमरली फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट, जिसको डेरिवेटिव्स कहा जाता है, एफएनओ कहते हैं, उसके लिए एप्लीकेबल होता है। क्योंकि और सिंस ये ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं बदलता है, इसीलिए कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कि मार्केट में हमेशा वही होगा जो पहले हो चुका है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। बस वही है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो बदल जाएंगे, बट द बिहेवियर ऑफ द मार्केट डज नॉट चेंज। तो ये टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस में आपको ये नहीं पता चलेगा कि व्हाई समथिंग इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है वो आप देख सकते हैं। क्यों के लिए आपको फंडामेंटल में जाना पड़ेगा, लेकिन वहां भी बहुत बार आपको एग्जैक्ट क्यों जो है वो पता नहीं चलता, चलता भी है और नहीं भी चलता है। तो अब मैं जो है थोड़ा सा है टाइम फ्रेम्स पे बात करूंगा, फिर हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स पे आ जाएंगे। तो मैं वहाँ चार्ट्स पे आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली 2-3 इंडिकेटर्स को यूज करके समझाऊंगा, बताऊंगा। तो यहाँ जो है क्या है कि जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तब आप सालों में पोजीशन होल्ड करते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 6 महीने को इन्वेस्टिंग नहीं बोलते। इन्वेस्टिंग एटलीस्ट 1 ईयर एंड अबव, 2 ईयर्स 3 ईयर्स को करते हैं, देन यू आर मोर ऑन द इन्वेस्टिंग। सेकेंडली इन्वेस्टिंग मीन्स क्या, ऑलवेज ऑन द बाय साइड, मतलब आप बाय करके चलते हैं, आप शॉर्ट कभी नहीं करते। वो हो गया। दूसरा हो गया पोजीशन ट्रेडिंग, आप कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक पोजीशन होल्ड करते हैं, सो दैट इज पोजीशन ट्रेडिंग। फिर तीसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, इसमें आप पोजीशन जो है वो कुछ घंटों से कुछ दिन तक होल्ड करते हैं, दैट इज स्विंग ट्रेडिंग। ऑन द फोर्थ इज डे ट्रेडिंग, जो जिसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। तो डे ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट, आज आपने खरीदा, आज मार्केट क्लोज होने से पहले आपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया और आप निकल गए। तो ये 4 तरह की ट्रेडिंग होती है, डे ट्रेडिंग हो गई, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग। तो जो पोजीशन ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, डे ट्रेडिंग है, ये सब में क्या है, टेक्निकल्स आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म में नहीं यूज कर सकते, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन वहां क्या है, आपके पास एक दूसरा भी टूल है फंडामेंटल एनालिसिस का भी इन्वेस्ट करने के लिए। बट शॉर्ट टर्म में आप फंडामेंटल्स के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट जो है आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो आज इसको देखा, HCL टेक को, तो HCL टेक काफी दिनों से 700 670 700 के बीच में ट्रेड कर रहा था, एटलीस्ट 1 महीने से। अचानक उसमें एक तेजी आई और आज जो है वो 800 पे चला गया। तो कहना मैं चाहता हूँ कि ये टेक्निकली ही आपको ये सब हो सकता है, कुछ सिग्नल्स मिले कि क्या बाई करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए, वो सब आपको मिले। लेकिन वहां भी आपको समझना जरूरी है कि ट्रेड्स जो हैं आपके, जस्ट 1 सेकेंड, समवन इज, सो माई स्क्रीन इज विजिबल नाउ।
ओके, थैंक यू। सो या, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि टेक्निकल्स जो है ना वो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, पोजीशन ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए यू कैन डेफिनेटली यूज। और इसमें क्या है, अब मैं टेक्निकल्स पे आता हूँ कि टेक्निकल्स जो है ना ये, इसमें बहुत तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स हैं। तो उसमें एक बहुत अच्छी सेइंग है कि टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। मतलब बहुत ज्यादा भी आप एनालिसिस करने लगेंगे तो पैरालिसिस मोड में चले जाएंगे, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू टेक द एक्शन। और इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इज ऑल एक्शन ओरिएंटेड। यहाँ आप इन्वेस्टिंग नहीं है कि आपने वो अ, खरीद लिया और उसके बाद आप उसको भूल गए साल, 2 साल, 3 साल। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं देन यू हैव टू बी ऑन द अलर्ट, लाइक अ सोल्जर, यू हैव टू बी ऑन द अलर्ट। तो टेक्निकल्स में क्या होता है, दो तरह के इंडिकेटर्स जनरली होते हैं। एक होता है ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स और दूसरा होता है नॉन ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स। तो मैं कुछ इंडिकेटर्स इस पे प्लॉट करके आपको दिखाऊंगा और दो तीन इंडिकेटर्स जो हैं उनके बारे में भी समझाऊंगा। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग के काफी वेबिनार्स जो हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। मेरे नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। एंजल ब्रोकिंग वेबिनार्स के नाम से भी आप सर्च करते हैं तो आपको वो सब मिल जाएंगे। तो और डेप्थ में भी इंडिकेटर्स कवर्ड हैं, जापानीज कैंडलस्टिक्स कवर्ड है, ऑप्शंस कवर्ड है, डेरिवेटिव्स कवर्ड है, तो वो सब आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो है अब मैं जो है कुछ इंडिकेटर्स प्लॉट करूंगा और मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो इंडिकेटर्स मैंने जो प्लॉट किए हैं, ये इंडिकेटर्स मैं आपको समझाऊंगा। आई विल टीच यू दीज इंडिकेटर्स, यू कैन हैव अ लुक एट इट। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये सारा कुछ जो है ना आप एंजल ब्रोकिंग मोबाइल एप्लीकेशन में भी सब आपको अवेलेबल है, तो वहां भी जाके ये सब देख सकते हैं। और एंजल ब्रोकिंग मोबाइल एप्लीकेशन में भी आपको 15 साल 20 साल का हिस्टोरिकल डेटा मिलेगा। जैसे अभी जो आप चार्ट देख रहे हैं, दिस इज अ डेली चार्ट ऑफ एचसीएल टेक्नोलॉजी। यहाँ डेली लिखा हुआ है। अभी क्या मैं इसको वीकली करता हूँ तो मुझे ये वीकली चार्ट ऑफ एचसीएल टेक्नोलॉजी मिल गया। तो उसी तरह से आप एंजल ब्रोकिंग मोबाइल एप्लीकेशन में भी एचसीएल टेक का वीकली देख सकते हैं। आप मंथली देखना चाहें तो मंथली देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत 20 साल का, 15 साल का डेटा मंथली चार्ट्स पे मिल जाएगा, जो स्टॉक्स में इसमें डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ क्या है, हम लोग डेली चार्ट देख रहे हैं। तो डेली चार्ट में क्या दिख रहा है, डेली चार्ट में दिख रहा है कि जो एचसीएल टेक्नोलॉजी जो है ओवरऑल तो पॉजिटिव ट्रेंड में ही यहाँ ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट। इफ यू सी, सो 380 से इट हैज मोर देन डबल्ड। मार्च में, ये जो इसने मार्च में लो बनाया था 18 मार्च को, उसके बाद फ्रॉम देयर इट हैज डबल। बट नो वन एक्सपेक्टेड कि ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना वायरस टाइम्स में, जब एवरी डे रिकॉर्ड बन रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यू केसेस, जो मार्केट है और स्टॉक्स है आर डबलिंग, 100% रिटर्न। दिस इज फॉर एचसीएल टेक। यू लुक एट रिलायंस, almost from 860 levels to 2300 levels, almost three times, slightly less than three times. So what I'm trying to tell you is कि मार्केट में ना you have to be prepared for anything under the sun। जैसे वॉर में क्या होता है, कहीं से भी गोली चल सकती है ना, आप ये तो नहीं बोल सकते कि सामने से ही गोली चलेगी या दिन में गोली चलेगी, रात में गोली नहीं चल सकती। उसी तरह से मार्केट में कहीं से भी गोली चल सकती है। मार्केट में कभी भी कुछ हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। दैट इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। आप ये नहीं बोल सकते अरे ऐसा कैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यू कांट से, बिकॉज यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। यू हैव टू जस्ट एज्यूम कि द मोमेंट आप मार्केट में आ रहे हैं देन यू आर अ सोल्जर, जस्ट लाइक अ सोल्जर। देन ओनली यू हैव अ चांस ऑफ सक्सीडिंग इन द मार्केट, अदरवाइज इट विल बी अ टफ थिंग। तो यहाँ हम लोग जैसे एचसीएल टेक है, हम लोग रिलायंस का चार्ट देखते हैं और उस पर हम लोग स्टडी करेंगे। और व्हाट आई विल डू इज, छोड़ दीजिए, मैं वी विल टेक द फर्स्ट स्टॉक। आप लोग में से जो भी चार्ट पे जो स्टॉक मेंशन करेगा, वी विल लुक एट दैट चार्ट, दैट स्टॉक टेक्निकली, प्रोवाइडेड वो लिक्विड स्टॉक हो। So it is Adani Green. Okay, so we'll take this question by Jayesh. So we'll look at this, बिकॉज मैं तो अपने मन से कोई भी लो, लेकिन आपका एक स्टॉक लेके उसी पे करते हैं। तो अडानी ग्रीन एनर्जी, so this is the stock. If you see, this is Adani. This I'm looking at a monthly chart of Adani.
last year we'll look at last year September, it was trading at 60, and this year September is it trading at 600. 10 times it has rallied, and in this month itself the stock is significantly up. So we will look at the daily chart and see what we can see. See, initially there was too much of upper circuit, lower circuit in the stock. Volumes were there, and then again the stock rallied. तो यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि if you are, यहाँ what we'll do is we'll look at the daily chart for this and we look at the weekly chart. Here one important point: never look at the market from one time frame. जैसे अभी अडानी का हम लोग चार्ट देख रहे हैं, तो दिस इज अ डेली चार्ट. सबसे पहले यू शुड गो बैक एंड सी द वीकली एंड द मंथली. तो वीकली में व्हाट आई हैव डन इज आई हैव जस्ट पुट द सेम इंडिकेटर्स जो मैं डेली में देख रहा था. तो वीकली में मैंने इसका, और मंथली पे भी मैं इसको देखना चाहता हूँ कि, तो मंथली में भी मैंने वही इंडिकेटर्स लगा दिए. ये मंथली है, ये इसका वीकली चार्ट है, और ये डेली चार्ट है. तो अभी क्या है, डेली का ट्रेंड इसका बहुत स्ट्रांग है, मतलब इट इज ट्रेडिंग एट रिकॉर्ड हाइस. वॉल्यूम्स भी काफी है, बट अब सवाल उठता है कि इज दिस अ गुड लेवल टू बाय? डेफिनेटली नॉट अ गुड लेवल टू बाय at current levels. Only on correction towards maybe 560, 570, that can be looked as a buying opportunity, but not at the current levels. तो टेक्निकल क्या है ना, टेक्निकल से एक एक्सरे है, वो आपको बता सकता है. तो सबसे पहले यू शुड लुक एट द लॉन्ग टर्म ट्रेंड, किसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसा है. जैसे वीकली ट्रेंड आपने देखा, तो वीकली में मैंने क्या, हाँ, नाउ आई विल कम टू द इंडिकेटर्स बिकॉज मेथड जो है उस पर आई वांट टू स्पेंड सम टाइम. सो लुक एट दिस डेली चार्ट. तो डेली चार्ट में व्हाट आई हैव डन इज आई विल जस्ट इसमें आप देख सकते होंगे देयर इज अ ग्रीन लाइन. So that's a very good indicator. I to use it very well. That's something called a 10 period exponential moving average. जो है ना, वो आपको ये बताएगा कि whether the market is trading और the market is trending. Trending मतलब एक डायरेक्शन में चल रहा है कि साइडवेज चल रहा है, मूविंग एवरेज बताएगा. और मूविंग एवरेज का स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यदि आप इसका देखेंगे ना, तो ये स्लोप, जो ग्रीन लाइन का स्लोप है ना, वो अप है. तो जब भी वो मार्केट डिप किया, जितना ग्रीन लाइन के नजदीक आपने खरीदा और ये स्लोप अप है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है. So this is the first indicator which you can use. Intraday trading में भी you can use. We'll look at intraday also and look at this. But यहाँ daily में थोड़ा सा समझा दूं. And best part क्या है, technical indicators work in all time frames. जैसा वे डेली पे काम करेंगे, वैसे ही वीकली पे काम करेंगे, वैसे ही आवरली पे काम करेंगे, वैसे ही 15 मिनट्स पे काम करेंगे. Don't go below 15 minutes time frame until unless you are trading index. इंडेक्स में आप 5 मिनट चार्ट देख सकते हैं, बट उससे नीचे नहीं जाना चाहिए बिकॉज आपको बहुत ज्यादा विपसॉस दे सकता है. तो ये क्या है, ये मैंने जो ग्रीन लाइन है दैट इज अ 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. दैट्स समथिंग व्हिच यू कैन यूज फॉर योर डायरेक्शन. उसका स्लोप इज इंपॉर्टेंट. प्राइस उसके ऊपर क्लोज कर रहा है और स्लोप यदि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन. दैट इज कि बुल्स आर स्ट्रांग, यू शुड बी ऑन द बाय साइड ऑफ द मार्केट. दूसरा एक इंडिकेटर यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो जिसे एमएसीडी बोलते हैं, एमएसीडी हिस्टोग्राम. तो मैंने यहाँ एमएसीडी हिस्टोग्राम प्लॉट किया है. ये भी ट्रेंडिंग इंडिकेटर है. तो ये क्या, जीरो लाइन है, और ये जीरो लाइन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव है, जीरो लाइन के नीचे जो है वो नेगेटिव है. तो जब जीरो लाइन के नीचे रहता है ना, तो वो उतनी आसानी से फिर ऊपर नहीं जाता है. मतलब क्या, ऊपर नीचे वो करते रहेगा. लेकिन एक बार वो पॉजिटिव होके जब लाइंस, ये हिस्टोग्राम बढ़ने लगा ना, इसका मतलब है कि ये क्या है, ये आपको ये ट्रेंड स्ट्रेंथ बताता है कि हाँ, अभी बुल्स जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है. क्योंकि हर एक दिन का जो बार है ना, प्रीवियस डे के बार से बड़ा हो रहा है. इसका मतलब है कि बुल्स ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप बाय करके चल सकते हैं. जैसे ये देखिए, ये वाला जो हाई था इसका 8 जुलाई को 420 के आसपास, 425 का था. उसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो ये ब्रेकआउट भी हुआ. कि जिसने इसको देखा इधर भी देखा, इधर देखा, उसको यदि बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है तो वो बाइंग करके चल सकता है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये सब टेक्निकल इंडिकेटर्स अब काम करते हैं बिकॉज दे स्टडी मास साइकोलॉजी. तो ये एक स्टॉक है जिसको आप देख सकते हैं. तो यहाँ मैंने आपको दो इंडिकेटर बताया, जो मूविंग एवरेज बताया. क्या इसमें अलग अलग मूविंग एवरेज में यूज करता हूँ. यहाँ जैसे आप देखेंगे तो ये एक ब्लू वाला मैं यूज कर रहा हूँ, ये भी आप यूज कर सकते हैं. 180 वेटेड है. जैसे मूविंग एवरेज है ना, डिफरेंट टाइप. सिंपल मूविंग एवरेज होता है. यदि आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना चाहते हैं, तो 100 डे 200 डे प्लॉट करना चाहते हैं, तो आप सिंपल यूज कीजिए. लेकिन आप शॉर्ट टर्म देखना चाहते हैं, 10 पीरियड हुआ, 30 पीरियड हुआ, तो उसमें एक्सपोनेंशियल यूज कीजिए.
बिकॉज शॉर्ट टर्म में एक्सपोनेंशियल वर्क्स बेटर। और ये वेटेड मूविंग एक एवरेज है 180, इट इज वेरी गुड। आपको ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स भी बहुत बार बता देता है, सो इट इज क्वाइट यूजफुल देयर। तो ये तो मूविंग एवरेजेस हो गया, इसको आप यूज कर सकते हैं। फिर इसको जिस टाइम फ्रेम में आप यूज करना चाहे कर सकते हैं। फिर दूसरा जो मैंने आपको बताया वो है कि एमएसीडी हिस्टोग्राम। ये स्ट्रांग है, यदि ये पॉजिटिव है, ये बुलिश है, और ये बाज जो है इसके बढ़ रहे हैं, तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। और फिर ये जो है वो स्टोकेस्टिक है, जैसे आपने बहुत बार टीवी में सुना होगा ओवरबॉट जोन, ओवरसोल्ड जोन। तो उसके लिए ऑसिलेटर्स है, जब मार्केट साइडवेज चलता है तो ये काफी अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब मार्केट ट्रेंड में चलता है तो ये अच्छा काम नहीं करते। उसी तरह से मूविंग एवरेजेस जो है ना, जब मार्केट ट्रेंड में चलता है तो अच्छा काम करते हैं, और जब साइडवेज मार्केट चलता है तो अच्छा काम नहीं करते। तो स्टोकेस्टिक से आपको ये पता चलेगा कि अभी ओवरबॉट जोन में है कि ओवरसोल्ड जोन में है। तो उसका क्या मतलब, वो ओवरबॉट जोन में मतलब कि मार्केट में कुछ करेक्शन आ सकती है, जरूरी नहीं है कि आए। बहुत बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं ओवरबॉट में चला गया तो अब सेलिंग आ जाएगी, जरूरी नहीं। अभी यहाँ आप अडानी ग्रीन में देखिए, ओवरबॉट में ये पहली बार इधर आया, तो उसके बाद एक मामूली सा करेक्शन आया, उसके बाद यहाँ फिर ओवरबॉट में आया, और उसके बाद से ये जरा डिप किया, उसके बाद ओवरबॉट में 80 के ऊपर चल रहा है। मतलब यहाँ स्टोकेस्टिक में मैंने 80-20 लिया है कि 80 के ऊपर इसकी वैल्यू रहेगी तो ओवरबॉट है, 20 के नीचे रहेगी तो ओवरसोल्ड है। बहुत लोग 70-30 लेते हैं, मैं थोड़ा सा उसको टाइट करके रखता हूँ, 80-20 लेके चलता हूँ। अब देखिए 80 के ऊपर तो काफी समय से चल रहा है, 400 के लेवल से ही चल रहा है, और अभी कहाँ 640 के आसपास है। यदि मैं वही 400 पे शॉर्ट कर देता तो मैं अटक जाता। तो इंडिकेटर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दे विल आल्सो गो रॉन्ग, मींस कुछ आपको ट्रेड गलत मिलेंगे, तो वहां आपका मनी मैनेजमेंट जो है आपको बचाएगा। That's the reason you have to have strong money management in place. Because if you have money management in place, then the possibility and probability of you being right and make money from a long term perspective is very high. तो ये सब कुछ indicators हैं जो आप use कर सकते हैं। So now we will look at one more stock of anyone's interest, and then we'll look at the index intraday. Okay, yeah. So we are seeing Petronet. Okay, so next we'll look at Petronet, and then we will look at the index. तो ये पेट्रोनेट है। पेट्रोनेट का चीज सो सिंपल। अभी जैसे आपने पेट्रोनेट का चार्ट देखा, अभी क्या है, जस्ट टू अभी जो मैंने आपको बताया, ये इसका ग्रीन ग्रीन वाला जो लाइन है 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल, ये क्या है, स्लोपिंग डाउन है। देखिए कहाँ से ये स्लोपिंग डाउन चल रहा है, यहाँ से 20 अगस्त से इसका ट्रेंड डाउन है। तो क्या जरूरत है आपको खरीदने की, शांति से आप बैठिए, व्हाई डू यू वांट टू बाय, और अभी भी मत खरीदिए, लेट इट क्लोज अबव दैट। दूसरा, इफ यू लुक एट दिस, डेली का भी क्या है, ये एमएसीडी जो है वो नेगेटिव है। इसीलिए क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है, ऊपर जा रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है। ये क्या डबल बॉटम है, टेक्निकल में इसको देखें तो ये इसका क्या मतलब है कि समवेयर अराउंड 225-230 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब हम लोग ऐसा करेंगे, थोड़ा सा लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम, इसका वीकली चार्ट देखेंगे कि वीकली ट्रेंड क्या कहता है। तो वीकली ट्रेंड में भी देखिए इसका ट्रेंड डाउन है, और ये एमएसीडी नेगेटिव है, लेकिन ये ओवरसोल्ड में है, मतलब बहुत ज्यादा नीचे जाने की गुंजाइश कम है। हम लोग मंथली ट्रेंड देखें तो मंथली में भी क्या ये नेगेटिव ही है, मतलब इसमें बाइंग करके चलना मेरे हिसाब से कोई मतलब, आई विल नॉट प्रेफर टू टच द स्टॉक। क्योंकि ये क्या है, यदि 240 के ऊपर चलेगा तो 245-46 पे रुक जाएगा। नीचे क्या है, 225 के आसपास, 225 से इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 225 से 245 का रेंज इसका मुझे फिलहाल दिख रहा है। तो ये है, तो दैट इज क्लियर। नाउ वी लुक एट एन इंडेक्स। सपोज हम लोग निफ्टी देखते हैं कि निफ्टी में क्या चल रहा है। तो ये निफ्टी है। अब देखिए निफ्टी आपको क्या बता रहा है, ये जो ग्रीन लाइन है 10 पीरियड, इसके तो ऊपर चल रहा है, करेक्ट। बट ये एमएसीडी देखिए कितना नेगेटिव है डेली का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। तो तो इसका मतलब है मार्केट अभी साइडवेज चलेगा। अब देखिए आज क्या हुआ निफ्टी में, हायर लेवल्स पे लोगों को जाके अटका के वहां से मार्केट पूरा करेक्ट कर गया, जिस तरह की। अब हम लोग इंट्राडे देखते हैं कि इंट्राडे चार्ट कैसा बना इसका निफ्टी का। तब ये देखिए इंट्राडे है, गैप अप हुआ। निफ्टी की जो कल की क्लोजिंग थी, मीन्स फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी, वो 11,464 पे थी, और आज 11,540, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स, 90-100 पॉइंट्स निफ्टी गैप अप हुआ। थोड़ा सा और ऊपर गया, वहां ट्रैप किया लोगों को, और वहां से जो है निफ्टी में करीब
200 पॉइंट की गिरावट हुई, 11,570 से 11,380 के आसपास ऑलमोस्ट, फिर बाउंस बैक करके क्लोज किया। लेकिन अब आप देखिए कि नाउ विल पुट दोज इंडिकेटर्स। तो अभी क्या है, सबसे पहले आप डेली का चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का ना, तो आपको क्लैरिटी आ गई कि ये तो साइडवेज मुझे दिख रहा है, मतलब मैं बाय करके भी चल सकता हूँ, सेल करके भी चल सकता हूँ, लेकिन मुझे ये समझना है कहाँ बाय करना है कहाँ सेल करना है, क्योंकि दोनों में पैसा बन सकता है। ये हायर लेवल पे गया, अभी क्या है निफ्टी जैसे, अब हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं, तो ये क्या आज ट्रैप कर दिया लोगों को, यहाँ गैप अप किया, लोगों को लगा और तेजी होगा, और उसके बाद इसने जो डे का हाई था, शुरू में जो हाई था उसको भी यहाँ तोड़ा, तो और लोगों को ट्रैप किया, उसके बाद वहां से पूरा करेक्ट कर गया। तो कहना मैं चाहता हूँ कि मार्केट में कभी भी कुछ हो सकता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, दैट्स समथिंग व्हिच यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। टेक्निकली आपको पता चलेगा, अभी जैसे ये देख के एटलीस्ट यू विल बी, अभी जैसे आप देखिए काफी दिनों से जो नेगेटिव में चल रहा है, तो क्या हो रहा है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे, इसी तरह से ये चल रहा है, मतलब इट्स नॉट इजी, नॉट इजी कॉल ऑलवेज। तभी 15 मिनट्स में आपने देखा, अभी इसको मैं वो इंडिकेटर जो मैंने प्लॉट किया वो इस पे मैंने डाला। तो सबसे पहले 60 मिनट्स देखता हूँ, तो 60 मिनट्स में देखिए ये ग्रीन लाइन के ऊपर है, एमएसीडी पॉजिटिव है, तो मतलब कहीं बाइंग हो सकती है। तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा बाइंग करके यहाँ अटका के फिर उसमें करेक्शन आ गया। 15 मिनट्स में आप देखिए तो 15 मिनट्स में क्या है ये, हाँ ये एक इंडिकेटर है जो मैं आपको बताना, ये बोलिंजर बैंड है, ये जो पिंक लाइन है, ये पिंक वाला, और ये जो लाइट ब्लू लाइन है ना, ये बोलिंजर बैंड है। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। जब भी बोलिंजर बैंड जो पिंक लाइन की जो है ना, उसके बाहर क्लोज करके अंदर क्लोज करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ करेक्शन हो सकती है। उसी तरह से जब बोलिंजर बैंड के ये ब्लू के बाहर, लोअर बैंड जो है उसके बाहर बंद होके फिर अंदर बंद हो रहा, तो एक बाउंस बैक हो सकती है। तो इसको आप ट्रेंड के साथ मिक्स करके देख सकते हैं, दिस अ वेरी गुड इंडिकेटर, मैं इसको जरूर यूज करता हूँ। तो दैट समथिंग विच यू कैन यूज, बट कभी कभी क्या होता है, यू विल गेट ट्रैप्ड। आज जैसे मार्केट आपको शॉर्ट टर्म में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन डेली चार्ट पे इट वॉज नॉट वेरी स्ट्रांग। यदि वीकली देखेंगे तो वीकली निफ्टी का फिर भी काफी स्ट्रांग है, मतलब ट्रेंड अप है, ये भी एमएसीडी भी पॉजिटिव है। ओवरबॉट में अब देखिए, ओवरबॉट में कब से है, ओवरबॉट में तो जून 12 से है। तो पहली बार ओवरबॉट में गया, कोई शॉर्ट करके बैठ गया तो साफ हो गया ना, क्योंकि 10,800 से, सॉरी 10,300 से अभी 11,400, मतलब 1,011 पॉइंट्स, 1,100 पॉइंट्स ऊपर वो ट्रेड कर रहा है। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहना मैं चाहता हूँ कि टेक्निकल इंडिकेटर्स है, इशूड यूज। अब जैसे निफ्टी है, सपोज फॉर एग्जांपल 5 मिनट का चार्ट में देखता हूँ, तो अभी देखिए 5 मिनट पे क्या है, ये बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोज किया, अंदर आया, फिर यहाँ नीचे करके देखिए, यहाँ जिसने इसके ऊपर स्टॉप लगाया उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर किया। इसीलिए स्टॉप लॉस जो है ना, वो अच्छे लेवल पे आपको लगाना पड़ेगा, मतलब जस्ट प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लोज नहीं, आप वहाँ पिवट लेवल्स यूज कीजिए, कोई मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कीजिए, तो वो ज्यादा आपके फायदे में रहेगा। तो ये सब कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स देखिए सैकड़ों हैं, लेकिन लेकिन दो तीन, तीन चार से ज्यादा तो यूज नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने आपको कहा ना, टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, बहुत ज्यादा एनालिसिस करेंगे तो पैरालिसिस होगा, वही वाली बात है। और इंट्राडे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में तो आपको क्विक फायर, मतलब इमीडिएट ऑर्डर मिला कि गोली चला देने वाली बात है, मतलब यू हैव टू पुल द ट्रिगर। दैट्स द वे यू कैन सक्सीड इन इंट्राडे ट्रेडिंग, दैट्स व्हाट ऑल 3M इज अबाउट, योर माइंड, मनी एंड मेथड। तो मेथड में टेक्निकल से शॉर्ट टर्म के लिए इट्स वेरी गुड, उसमें क्या है, बट टेक्निकल्स को क्या होता है, हम लोग इमोशनल होकर देखने लगते हैं। हम लोग पहले से मन बना लेते हैं कि बाइंग है मार्केट में, बाइंग है, और हो सकता है मार्केट सेलिंग का इंडिकेशन दे रहा हो, सो वी ओवरलुक दैट। तो जितना आप ऑब्जेक्टिवली यू स्टडी द मार्केट, जितना ऑब्जेक्टिवली यू लुक एट द मार्केट, उतनी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है आपके सक्सेस की। तो ऐसे क्या है, काफी इंडिकेटर्स है, जैसे एक दो मैं अब इंडिकेटर्स और दिखा के उसके बाद देन वी विल क्लोज इट ऑफ। तो ये एक इंडिकेटर मैं आपको दिखा दूंगा, एक जैसे सुपर ट्रेंड करके इंडिकेटर है, वो भी काफी लोग देखते हैं, तो उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं, जैसे सुपर ट्रेंड है ये। तो ये क्या है, ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए और ये कर देता हूँ। हाँ, अभी ये ग्रीन लाइन और रेड लाइन, तो जब ये प्राइस ग्रीन लाइन के ऊपर रहता है, इसका मतलब है तेजी है। तो आज क्या था, थ्रू आउट प्राइस इसके ऊपर था, तो लेकिन कहाँ खरीदना है, फर्स्ट टाइम जो क्रॉस करता है वो खरीदना बेस्ट टाइम होता है। फिर आज उसके बाद दिन भर वैसा रहा, फिर ये वाला जो है इसके नीचे क्लोजिंग हो, इसका मतलब है सेलिंग, इधर से सेलिंग प्रेशर आ सकती है। लेकिन इधर क्या हुआ, एक उस एक दो दिन
मतलब यदि फ्राइडे की बात करूं तो पूरा साइडवेज चला, ऊपर खुला फिर नीचे आया फिर उधर ही बंद हुआ। आज क्या हुआ, गैप अप हुआ ऊपर, उसके बाद फिर इसके नीचे बंद हुआ। तो जब पहली बार वो इसके बाहर या अंदर बंद, ऊपर या नीचे बंद हो रहा होता है, तब आप ज्यादा उस पर एक्शन ले सकते हैं या उसको स्टडी कर सकते हैं फर्दर। तो ये जैसे एक सुपर ट्रेंड है, इसको आप यूज कर सकते हैं। मूविंग एवरेजेस यूज कर सकते हैं, बॉलिंजर बैंड यूज कर सकते हैं, एमएसीडी यूज कर सकते हैं, स्टोकेस्टिक्स, जापानीज कैंडलस्टिक्स भी काफी अच्छा टेक्निक है, वो भी आप लोग थोड़ा सा उस पर स्टडी कीजिए। मेरा वेबिनार है उस पर, उसको भी आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए, एंजल ब्रोकिंग के वेबिनार में, वहां आपको मिल जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इसको आप लोग और स्टडी कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, यदि मार्केट से आपको पैसा रियल में बनाना है तो नो, देर इज नो सब्सिट्यूट फॉर नॉलेज, बट अलोन नॉलेज विल नॉट डू एवरीथिंग। योर माइंडसेट एंड योर मनी मैनेजमेंट जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। करने के बात करने के लिए मैं और भी बहुत चीजें हैं जो कवर कर सकता हूँ, बट आई थिंक वी विल क्लोज द सेशन टुडे। आई होप you all had some good learning. If there is any question, we can take the questions. Yes, there are some questions. How do we know based on candle analysis when will a bear? Okay, we are analyzing the data of companies on what? Okay, like on which software are we using? Okay, तीन चार क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है उसको एनालाइज करते हैं, तो व्हाट आई विल डू, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो दूसरा क्वेश्चन है। और कैसे हम लोग बुलिश मार्केट बेरिश मार्केट स्टडी करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल वी लुक एट निफ्टी। ये सॉफ्टवेयर जो मैं यूज कर रहा हूँ ये फैल्कन सॉफ्टवेयर है। लेकिन एंजल ब्रोकिंग, जैसा मैंने कहा, एंजल ब्रोकिंग मोबाइल एप्लीकेशन या वेब पे भी जो चार्टिंग एप्लीकेशन है उसमें आपको सारा कुछ ये मिल जाएगा, तो आप यूज कीजिए। अभी जो अब मैं आपको, तो आई थिंक होप दैट इज क्लियर। ये मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ निफ्टी का, तो अभी निफ्टी में यदि आप देखेंगे ना, तो ये एक रेड कैंडल बना था, ये बना था 31 अगस्त को। अब देखिए रेड कैंडल बना है और ये ग्रीन कैंडल्स है, वन, फिर एक ग्रीन रेड ग्रीन रेड ऐसा बना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो सिक्स जो कैंडल के, इफेक्टिवली 5 1 2 3 4, ये 5 कैंडल के जो बॉडीज है ना, वो इस रेड में कवर्ड है। तो दिस इज द बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न आफ्टर द रैली। इसका क्या मतलब हुआ कि निफ्टी का अपसाइड में 11,750 11,800 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन निफ्टी के लिए हो गया है। तो जब तक उसके ऊपर नहीं जाता, कोई मेजर रैली नहीं है, जब भी वहां जाएगा वहां से सेलिंग प्रेशर आ जाएगी। तो दैट इज देयर। सो कैंडलस्टिक पैटर्न्स में ना आपको इमीडिएट बहुत बार अर्ली वार्निंग सिग्नल मिलता है जो और किसी इंडिकेटर में नहीं मिलता है। तो आई वुड रिकमेंड कि इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड, कैंडलस्टिक्स पे भी थोड़ा स्टडी कीजिए। मेरा उस पे यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, एंजल ब्रोकिंग इसमें वेबिनार्स में, वो भी आप देख सकते हैं। यू विल हैव अ वेरी गुड लर्निंग। सो और बेस्ट पार्ट इज की टेक्निकल्स जो है वो सब मार्केट में काम करता है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अभी जैसे हम लोग निफ्टी देख रहे थे, अभी मैं ये क्रूड ऑयल मैंने लगा दिया, तो ये क्रूड ऑयल का सपोज ये आवरली चार्ट में देख रहा हूँ। तो और या फिर ये अभी सपोज रूपी है, रूपी का मैं चार्ट लगा दिया हूँ, रूपी, ये इंडियन रूपी का ये वीकली चार्ट है। तो अब आप देखिए वीकली में, दिस इज यूएसडी आईएनआर वीकली, दिस इज व्हाट अ डो, ऑलमोस्ट अ डोजी, दिस इज व्हाट अ ट्वीजर स्टॉप जापानीज कैंडलस्टिक्स में। इसका मतलब है कि ये जो एक 77 बना था वो टॉप आउट हो गया, मतलब जिसको बेचना शुरू करना था वो उधर से बेचना शुरू कर सकता था। ये मंथली चार्ट है रूपी का। तो मंथली ट्रेंड मुझे क्या बता रहा है कि ओवरऑल रूपी में अभी एक करेक्शन आया, वो कहाँ जाके रुकेगा, तो समवेयर रूपी हैज गॉट वेरी गुड सपोर्ट एट 7240 7250। तो बेस्ट पार्ट क्या है कैंडलस्टिक्स, बेस्ट पार्ट क्या है टेक्निकल एनालिसिस का, कि आप कोई भी चार्ट लगाते हैं ना, यू विल गेट टू नो इमीडिएटली वंस यू स्टार्ट सीइंग द स्टार्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। हाँ ये है कि टेक्निकल्स डज नॉट वर्क वेल, जहाँ लिक्विडिटी बहुत कम रहती है स्टॉक में वॉल्यूम बहुत कम रहता है, वहाँ आप टेक्निकल्स मत यूज कीजिए, बिकॉज वो क्या है, वो फेक है। तो जहाँ जो स्टॉक्स में ज्यादा लिक्विडिटी है, जैसे इंडेक्स हो गया, जो टॉप स्टॉक्स हैं वो सब हो गए, उसके बाद कमोडिटीज हो गए, करेंसी, ये सब में टेक्निकल्स बहुत अच्छा काम करता है। So, yeah, so I think, can you explain methods of patterns to take bull or bearish? Methods of patterns, basically you have, see, there are there will have another session on patterns itself, because that will make more sense. But to start with, you can look at double tops, double bottoms, then triple tops, triple bottoms. They are very good patterns to work with. वो काफी अच्छा है, डाइवर्जेंस पैटर्न्स भी हैं,
they are also very good. Bullish patterns, bullish divergence, bearish divergence patterns, ये सब भी आप study कर सकते हैं. But I would say look at double tops, double bottoms. That is a very good thing. If we look at we look at some more on the stock side. One or two more we will look, and then we'll. Just look at this. अडानी तो हम लोगों ने एक देख लिया था, तो we'll skip that. You just look at this. What is this? Bajaj Finserv. So if we look here, look, this is a doji formation. ये डोजी फॉर्मेशन ऑन अ मंथली चार्ट, ये जनवरी में बना था. इसका ये बनने के बाद ही मतलब क्लियर कट सिग्नल हो गया कि अब मार्केट का इसका खेल खत्म हो गया, उसके ऊपर नहीं जा रहा. मतलब जितना बेचना है आप उधर बेचो, बुक प्रॉफिट करके बैठो शांति से. No one expected this sort of fall, definitely, because this was the COVID scenario. But still, this meant that there is a this again a doji, but it is formed on a correction. So this is not valid from that perspective. Now just look at this. Is what a double top. We are looking at what Bharat Petroleum. See here, this is October 2017. It had made a high of 551. And just see here, in November 2019, it had made a high of 549. So double top formation on a monthly chart means it's a clear cut signal. क्या market इसके ऊपर जाना मुश्किल है. So how much time does it take? Hardly few seconds it took me to look at this. So more you analyze, the better you become at it. इसको आप जितना यूज कीजिए उतना आपके लिए ये अच्छा रहेगा. Yeah, there's a question. We'll take this last question by Kumar Gaurav that Nifty, Bank Nifty was down and there were positive news about Canara Bank. So we'll just look at the Canara Bank chart. There is one thing, if the overall market is down, then a stock, see, today the market corrected from all from its highs, but HCL Tech rallied because HCL Tech overall the trend was strong for that. This is Canara Bank. So Canara Bank, we will plot those indicators. So this is the last question that I'm taking for the day. So if you look at this Canara Bank, okay, so what am I seeing on the indicator? That green line is telling me that the trend is still down for Canara Bank. Last 3 days it is up, it is down for Canara Bank. If I look at the MACD, that also histogram is negative. So effectively it tells me that the trend is down. So a positive news has come, but just see what the market has done. In spite of a positive news coming, the market is down. That means it could be a very good time to sell. One important point, last point which I want to make. मार्केट में जो भी न्यूज आ रहा है ना, डोंट एक्ट ऑन दैट न्यूज. यू हैव टू एनालाइज इट केयरफुली, लॉजिकली, टेक्निकल फिल्टर से देखिए. इफ द न्यूज इज पॉजिटिव एंड द ट्रेंड इज अप, देन यू कैन स्टिल टेक अ चांस. बट इफ द न्यूज इज पॉजिटिव बट द ट्रेंड इज डाउन, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. बिकॉज जो आप ये समझिए ना, जो न्यूज पूरी दुनिया को मालूम हो गई, उसका क्या वैल्यू है? उस पर जिसको एक्ट करना था उसने तो कब एक्ट कर लिया होगा. So that has no value. So you have to look at the news from a long term perspective. A trend है क्या कुछ? Is there a trend to that? So that is more important. What is in public domain has no value until unless you do further analysis of it. जैसे फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, फर्दर एनालिसिस कर रहे हो कि ओके, और यदि कुछ बेनिफिट हो रहा है कंपनी को, तो और पहले कैसे बेनिफिट हुआ, इससे आगे कैसा रहेगा, क्या रहेगा. सो दैट एनालिसिस. अदरवाइज just for the news sake, it will react and then it will follow its own trend. So I hope I have answered your query. So yeah, so with this we shall end this webinar. I hope all of you all learned something. So wish you all the best, and do attend our webinars whenever they are arranged. You can also go to YouTube and see for yourselves. Thank you once again, and have a good evening. Thank you.